Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next lesson, lesson 9, that is Bholi by K.A. Abbas. If we talk about this lesson, then Bholi is the story of Sulekha. Okay, she is a young girl neglected by all. Education transforms her. Okay, it inspires courage and confidence in her. She raises her voice for her rights. Clear? And if we talk here means you can see that in this lesson you will read about the character Bholi. Okay, she is a young girl and everyone neglected her. Okay, but education, due to education, she just transforms herself. It inspires courage and confidence in her. She raises her voice for her rights. Clear? And if we talk about the characters, Bholi, her real name is Sulekha and she is Nambardar. Nambardar, a person in village of high status. Here, clear? Okay, and she is Nambardar Ramlal's youngest daughter. School education changes her outlook towards life. Here, if we talk about Ramlal, he is a prosperous father of 7 children who has a narrow mindset. Narrow minded he was. For him, daughters are born for marriage only. And Bholi's mother, she is a typical conservative mother. She does not take proper care of Bholi. Clear? She does not take proper care of Bholi. And then Bholi's school teacher. She educates Bholi and encourages her. She educates Bholi and encourages her. And then Bishambar, Bholi's prospective husband, who is a greedy man and a dowry seeker. Clear? He is a greedy man and he is a dowry seeker. Now we will go through the. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone has been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton means here a foolish person easily trickled by others. Okay, this is the word simpleton, and this is the foolish person that can be means tickled by anyone. And her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi. She was called as Bholi by everyone. Clear? And then she was the fourth daughter of Nambardar, an official who collects revenue. Clear? She was the fourth daughter of Nambardar, an official who collects revenue. Nambardar means an official who collects revenue. And his name was Ramlal. When she was 10 months old, जब वो 10 साल की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 ईयर्स थी वो गिर गई थी और जिसकी वजह से उसके सिर का कुछ पार्ट्स जो है वो डैमेज हो गया था. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन. और जब मतलब कि शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो एक बैकवर्ड चाइल्ड की तरह थी और उसका फिर भोली की तरह मतलब ट्रीट किया जाने लगा. एक सिंपलटन, एक भोली की तरह उसको कंसिडर किया जाने लगा. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. बर्थ की अगर हम बात करें, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. तो जो चाइल्ड था वो फेयर मतलब काफ़ी फेयर थी और प्रिटी थी ये, बट जब ये 2 साल की हुई तो इसको स्मॉल पॉक्स के इश्यूज हो गए. ठीक है. ओनली द आईज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. अब उसकी जो आईज थी सिर्फ वही बची, लेकिन जो पूरी इंटायर बॉडी थी वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गई. ठीक है ना. ब्लैक जो है उसके पूरे बॉडी पे वो हो गए, स्पॉट से हो गए, स्केयर से हो गए. ठीक है ना. ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ आंखों में प्रॉब्लम नहीं हुई, बाकी पूरी बॉडी पे हो गया. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. अब क्या हुआ, जो सुलेखा थी वो कुछ बोल नहीं सकती थी. शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 साल तक वो कुछ बोल नहीं पाती थी. ठीक है. एंड फिर उसके बाद उसने जब बोलना सीखा तो शी स्टैमर्ड माने हकलाना, हकला के बोलती थी. एंड द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. और जो बाकी के बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते और उसका जो है उसको कॉपी करते, उसका मजाक उड़ाते. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और जिसका यही रिजल्ट था कि वो बहुत कम बोलती थी और बहुत थोड़ा बोलती थी. रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल जो थी इनकी 7 चिल्ड्रन थे और उसमें से 3 सन थे और 4 डॉटर्स थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और जो सबसे यंगेस्ट डॉटर थी उसका नाम क्या था, भोली था.
It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. वो काफ़ी प्रॉस्परस थी, प्रॉस्परस मीन्स या रिच, ठीक है, रिच थी, और फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी अ लॉट, और प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा, और मतलब कि खाने पीने के लिए अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली के अलावा सारे जो बच्चे थे वो हेल्दी थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in college. लेकिन वो क्या था कि जो है सन को सिटी में भेज दिया जाता था, फिर उसके बाद कॉलेज में भी. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट एंड ऑलरेडी बीन मैरिड. अगर हम बेटियों की बात करें तो उसमें से जो राधा थी वो एल्डेस्ट थी और उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी. एंड द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और जो सेकेंड डॉटर थी उसमें मंगला थी, उसकी मैरिज भी पहले से सेटल हो चुकी थी. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. और फिर उसके बाद जो है मैरिज हैड बीन ऑल्सो हैड बीन सेटल्ड, उसकी मतलब सेटल्ड हो चुकी थी उसकी भी शादी, और फिर उसके बाद वो भी हो ही चुका था काम. फिर रामलाल जो है ना वो थर्ड चंपा के बारे में अब सोच रहा था. They were good looking healthy girls. It was not difficult to find bridegroom for them. वो सुंदर थी और अच्छी भी दिखती थी, तो इसलिए उनके लिए दूल्हा खोजने में कोई इश्यूज़ नहीं हुए. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. तो रामलाल जो था वो भोली के लिए वरीड था, ना तो वो जो है अच्छे लुक्स में थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड. और भोली जो थी वो क्या थी, 7 years old थी जब मंगला की शादी हुई थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपनड इन देयर विलेज. और उसी समय जो है ना प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए वहाँ पर ओपन हुआ विलेज में. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार हियर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी में वो आया. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example of the villagers. He said to Ramlal, उसने रामलाल से कहा, as a revenue officer, आप representative हो, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example of the villagers. तो फिर रामलाल ने कहा, as a revenue official, you are the representative, मतलब आप representative हो, आप स्पोक पर्सन हो ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज, ठीक है ना. एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ऑफ द विलेजर्स, और इसलिए तुम्हें जो है ना एक एग्जाम्पल शो करना है विलेजर्स के लिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. और फिर ये कहता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको एक एग्जाम्पल जो शो करना है उसके लिए आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा, क्योंकि उस समय कंसिडर किया जाता था कि बेटियों को स्कूल ना भेजा जाए, तो इसलिए फिर ये कहा जाता है कि बेटियों को स्कूल भेजना होगा. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हियर मीन्स डिस्कस, क्लियर, कंसल्टेड हियर मीन्स डिस्कस. तो जब रामलाल ने इस चीज़ को कंसल्ट किया हिज वाइफ, मतलब अपनी वाइफ से, तो शी क्राइड, आर यू क्रेजी इफ गर्ल्स, व्हाट डज इट मीन कंसल्टेड डिस्कस, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, क्लियर. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल को कोई भी मतलब कि करेज नहीं था कि इस चीज़ को वो डिसओबे करता तहसीलदार को. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, फिर फाइनली उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल. तो रामलाल हैड नॉट द करेज, इसको इस चीज़ पर मतलब कि विश्वास नहीं हुआ और उसने इस चीज़ को डिसओबे कर दिया. फिर एट लास्ट हिज वाइफ सेड, फिर उसकी वाइफ बोलती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं बताऊंगा कि क्या करना है. और फिर उसने भोली को स्कूल भेज दिया. एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. अब ये जब वहाँ पर जाते तो इसमें कुछ कमी चांस थे मैरिज के. विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर्स ऑफ स्कूल वरी अबाउट हर. कहते कि इसमें मतलब कि शादी का तो उसका चांस भी कम है, तो स्कूल भेज देते हैं भोली को, और फिर टीचर्स को ही इसके बारे में सोचने देते हैं, टीचर्स ही इसके बारे में सोचेंगे. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. अगले दिन क्या हुआ, रामलाल ने भोली के हाथ को पकड़ा और बोला कि जो है चलो, और भोली जो है इस बात से डरी हुई थी. She did not know what a school was like. और उसको ये नहीं पता था कि स्कूल कैसा है और क्या है. She remembered how a few days ago their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and sold. She did not know what a school was like. उसे ये नहीं पता था कि स्कूल क्या है और कैसा है. She remembered how a few days ago there was old cow. और सिर्फ इतना ही आता कि कुछ दिन पहले एक old cow थी
ठीक है। लक्ष्मी जिसका नाम था हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, जिसको जो है टर्न्ड आउट कर दिया गया और उसको बेच दिया गया। फिर ये कहते हैं नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और फिर वो मतलब कि डर से चिल्लाती है शाउट होकर के, और फिर उसके बाद उसका पुल्ड हर हैंड, उसका हाथ वो मतलब कि पकड़ती है और अपने मतलब कि फादर के जो हाथ पकड़ रखा था उसकी वो अपनी पकड़ छुड़ाने की कोशिश करती है। ग्रिप मीन्स पकड़, क्लियर। वॉट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। कहते क्या मामला है तुम्हारे साथ मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला के बोला, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल जो है ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what day will the teachers and the other school girls think of us when they see her. Then he told his wife, फिर वो अपनी वाइफ से बोलता है let her wear some decent clothes, कि आज इसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना दो ताकि जो है ना else teacher will and the other school girls think of us when they see her, ठीक है ना, ताकि वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचे जो भी वो देखें इस बारे में, ठीक है। Okay, new clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. तो नए ड्रेसेस के लिए बहुत ही कम ही मतलब कभी नहीं आते थे, और जो भी उसके द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर, जो पुराने ड्रेस होती थी उसके सिस्टर्स की वही उसको मिलती थी, और किसी को इस बात की केयर नहीं थी कि उसकी जो है उसको अगर मतलब वो फट रहा है तो उसकी मरम्मत करनी है या उसको वॉश करना है। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। फिर उसके बाद क्या था, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसको बिल्कुल साफ़ सुथरी ड्रेस मिली जो कि श्रंक मतलब थोड़ी सी सिकड़ी हुई थी आफ्टर काफ़ी बार धुलने के बाद, जो कि अब नो लॉन्गर फिटेड चंपा, चंपा को नहीं आती थी तो फिर वो इसको दे दी गई वो ड्रेस। शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और वो जो है शी वॉज इवन बाथड, और नहाती भी है, एंड ऑयल वॉज रब्ड, और ऑयल उसकी पूरी बॉडी पर रब भी किया जाता है, ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसकी जो ड्राई सूखे हुए और मैटेड हेयर है उसके ऊपर, क्लियर। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, फिर इसके बाद वो जो है इस बात पर विश्वास करना शुरू करती है दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम, कि वो जिस जगह पर उसे ले जाया जा रहा है वो जगह उसके घर से अच्छी है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो जो बच्चे थे वो पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और जो रामलाल था वो अपनी डॉटर को मतलब कि अपनी हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देता है कि हाँ भाई उसके टीचर्स को कि भाई अब आप संभालो इसे। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, फिर उसके बाद उसको जो है छोड़ देता है फादर, और द पुअर गर्ल वो जो है अपनी मतलब कि मतलब एक डरी हुई आंखों से अपने फादर को देखती है। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो वहाँ पर काफ़ी सारे रूम थे और हर रूम में उसकी जैसी लड़कियाँ थी वो बैठी हुई थी मैट पे, रीडिंग पढ़ रही थी और राइटिंग मतलब लिख रही थी स्लेट्स के ऊपर, बुक्स वगैरह थी उनके पास। Though the headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classrooms, तो जो headmistress थी वो भोली से पूछती हैं बैठने के लिए कि बैठ जाओ कॉर्नर में, ठीक है, इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठने के लिए बोल देती कि वहाँ बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपेंड देयर, और भोली को एक्चुअली ये भी पता भी नहीं था कि स्कूल क्या है और यहाँ पर क्या होता है, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वो सारी जो है उसी की एज की थी और वो वहाँ पर उसको मिल जाती हैं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको इस चीज़ की उम्मीद रहती है कि उसमें से कोई भी एक लड़की उसकी फ्रेंड तो ज़रूर बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो जो लेडी टीचर थी वो क्लास में वहाँ कुछ बता रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन भोली क्योंकि फर्स्ट डे था तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। She looked at the picture on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. अभी क्या था कि वो जो है ना कुछ वॉल पे पिक्चर्स देखती है। The colors fascinated her.
और जो कलर थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, और जो हॉर्स था वो ब्राउन था, बिल्कुल इतना ब्राउन कि पूछो मत। और तहसीलदार जो है हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और तहसीलदार जो है वो विजिट करने के लिए मतलब आया हुआ था विलेज में, ये सारी चीज़ें देखी थी वो हॉर्स उस समय, तो उसी हॉर्स की वो पिक्चर अब यहाँ पर वो देखती है। क्लियर। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट्स ऑफ देयर नेबर्स, तो हॉर्स तो जो तहसीलदार आया था उसके साथ देखी थी, फिर ये गोट कहाँ देखी थी, अपने नेबर पे देखी थी। पैरट भी ग्रीन है, जो कि इसने देख रखे थे अपने मैंगो के बगीचे में, ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जैसे उनकी लक्ष्मी थी वैसे ही ये काउ रहती है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और तभी भोली ये नोटिस करती है कि जो टीचर है वो उसके बगल में खड़े हैं और हंस रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, कि तुम्हारा क्या नाम है भोली। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब कि हकलाती है, भब भब भोली करके इस तरह से हकलाती है। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और अब वो जो है रोना शुरू कर देती है, और टीयर्स जो है वो उसकी आंखों से बहने लग जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल एक तरीके से फ्लड सी आ जाती है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, शी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपने सिर को बिल्कुल नीचे करती है, ठीक है। एंड शी सेट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, ठीक है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में बैठी रहती है और अपना हेड नीचे करती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू, और उस चीज़ की चिंता नहीं करती है कि जो गर्ल्स है जो इसे जानती हैं वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो भी उसके ऊपर हंसेंगी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. अभी कह रहे हैं कि जब स्कूल बेल बजती है, ऑल द गर्ल्स स्क्यूरिड मीन्स रैन और मूव्ड हरीडली, तो वो रूम से मतलब कि बाहर निकल जाते हैं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन वो अपना कॉर्नर नहीं छोड़ती है। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन शोबिंग, और उसका जो हेड था वो नीचे रहता है और वो अभी भी रो रही थी, उदास थी। बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, उस टीचर मतलब उसकी आवाज़ जो थी काफ़ी सॉफ्ट थी और रिलैक्सिंग थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, वो अपने पूरे जीवन में इस तरीके से नहीं मतलब कि उसको कोई बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, और इससे उसको काफ़ी अच्छा लगता है। क्लियर। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम, फिर टीचर उसको बहुत ही प्यार से बोलती है कि भोली उठ जाओ, ये कोई मतलब कि तुम्हें एक फ्रेंडली सजेशन है मेरा, उठ जाओ तुम और तुम्हारा नाम बताओ, इस तरीके से उसको वो बोलती है। क्लियर क्लास, आई थिंक द लेसन इज क्लियर टू यू। योर होमवर्क इज टू राइट द समरी ऑफ टॉट पोर्शन, यू विल हैव टू डू दैट। ओके क्लास, ओके।